ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के हिस्से में हम बातचीत कर रहे हैं भारत पाकिस्तान वार्ता से क्या कुछ नतीजा निकल पाया है, क्योंकि 2 दिवसीय जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। लेकिन भारत की जो चिंताएं हैं खास तौर से आतंकवाद को लेकर, उसको लेकर के पाकिस्तान की तरफ से कोई भरोसा नहीं दिया गया है, बल्कि सीधे सीधे ये कह दिया गया कि पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी भारत में किसी भी आतंकवादी हमले में अंजाम देने में उसका कोई हाथ नहीं रहा है। आइए सुनते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी ने क्या कुछ कहा। My talks with Foreign Secretary Mr. Ranjan Mathai on peace and security, including CBMs, Jammu and Kashmir, and promotion of friendly exchanges have been substantive. We discussed these issues in detail in a cordial atmosphere. We held separate meetings for each segment, which are part of Pakistan-India dialogue process. We reviewed progress on peace and security and agreed to convene separate meetings of the expert-level working group on nuclear and conventional CBMs. We also discussed in detail Jammu and Kashmir with a view to finding peaceful resolution. We also reviewed progress on various cross-LOC intra-Kashmir CBMs. We have agreed to convene a meeting of the joint working group on cross-LOC CBMs to streamline and strengthen travel and trade arrangements. We agreed that friendly exchanges in various fields will help in building trust and resolving all issues. We have agreed that the process of dialogue should continue as there is no alternative to dialogue and constructive engagement. Pakistan and India are two important countries in South Asia. They have a special responsibility to promote stability, peace, and prosperity in the region. We are not only close neighbors, we are also partners in SAARC. I have conveyed to Foreign Secretary Mathai that Pakistan seeks friendly, cooperative, and good neighborly relations with India. We must make sincere and serious efforts towards building mutual trust, applying political will in resolving all outstanding issues through peaceful means, and continue to work for promotion of peace, harmony and cooperation. और अब सुनवाते हैं विदेश सचिव भारत के रंजन मथाई ने क्या कुछ कहा। We said the issue of peace and security, including CBMs, was discussed in a comprehensive manner. Both sides emphasized the need to promote greater trust and mutual understanding through constructive dialogue. The Foreign Secretaries noted both countries recognize that terrorism poses a continuing threat to peace and security. They reaffirmed the strong commitment of the two countries to fight and eliminate terrorism in an effective and comprehensive manner. The Foreign Secretaries had a comprehensive exchange of views on the issue of Jammu and Kashmir and agreed to continue discussions in a purposeful and forward-looking manner with the view to finding a peaceful solution by narrowing divergences and building convergences. And finally, I draw your attention, both sides underlined the importance of greater people-to-people contacts and friendly exchanges in building a relationship of trust and friendship between the two countries. विश्वास बहाली को लेकर सबसे ज्यादा जोर देते हुए नजर आए हैं दोनों विदेश सचिव। लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे महेश्वरी जी कि जिस तरह से भारत एक लंबे समय से बार बार यही बता रहा है कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद जो है फैलाया जा रहा है, उसकी ज़मीन पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, क्या भारत सिर्फ ये बताता ही रहेगा? देखिए, असल में भारत उनकी मजबूरी भी समझता है, क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ रिमोट कंट्रोल से शासन है, तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। इन दी हार्ट ऑफ हार्ट वो जानते हैं कि ISI उनके कंट्रोल के बाहर है, या मिलिट्री का एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो इस वजह से जो वहाँ की सरकार है उसकी अपनी मजबूरियां हैं, और उनको भारत भी समझता है, वो भी समझते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें डायलॉग से आगे बढ़ाई जा सकती हैं, और जब तक अगर डायलॉग जैसा संवाद शुरू हुआ है तो इससे फिर उसमें दोनों देशों की जनता में एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होगा। अभी इसके बाद में
हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ कि इशू टेररिज्म बड़ा भारी है। अभी जो ये खुलासे हुए हैं लेटेस्ट, और जिसमें साफ हो गया है कि वहाँ के ISI का हाथ था यहाँ अटैक पे, बॉम्बे अटैक में, तो उसको अब जग जाहिर है, लेकिन उसको वो कभी अपने मुंह से नहीं कह सकते। नहीं, जब अब तक हम ये साबित नहीं करा पाए कि हमारे यहाँ जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरजमीन से ही उसके तार जुड़े होते हैं, उसका लगाव होता है, बावजूद इसके हम ये कैसे भरोसा कर लें कि आखिर पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर भारत की जो चिंताएं हैं उसको लेकर के संजीदा होगा? नहीं, आतंक से देखिए वो भी ग्रसित है। आतंक आपका नहीं, तो ये चीज अमेरिका नहीं जानता क्या? अमेरिका को एक आतंकवादी नजर आया, उसने खट से उसके जमीन पे जाकर के उस आदमी को पिक कर लिया। नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए हम पड़ोसी हैं, हम उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकते। नेबर्स को का नजरिया और है, अमेरिका इतनी दूर बैठा है, उनका नजरिया और है। तो हम समझते हैं कि ये सौहार्दपूर्ण वातावरण जो शुरू हुआ है इसको बढ़ाया जाना चाहिए, और दोनों सरकारें बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। पुष्पेंद्र, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अमेरिका अगर देखा जाए उसको एक आतंकवादी नजर आता है, वो वहां से पिक कर लेता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए अमेरिका अपने हिसाब से जब चाहता है मदद रोक देता है पाकिस्तान की, जब चाहता है वो मदद देना शुरू कर देता है, यानी उसको अपना हित सामने रखता है। क्या भारत की जो नरमी है, भारत का जो सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो यहाँ पर आड़े आ रहा है कि जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं हो पा रहा है और बराबर आतंकवादी हमले होते रहते हैं और भारत के नागरिक जो है मारे जाते हैं, हम असहाय से यहाँ बैठे रहते हैं? देखिए, दो बातें साफ हैं कि एक तो भारत अमेरिका नहीं है, हमें अपने पैरों में कितनी दम है इसका अंदाजा रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा, बर्किना फासो जैसा मुल्क ऐसा नहीं होगा कि ये जो बात आपने कही कि वो अपने हित सामने रखता है, हर मुल्क अपने हित सामने रखता है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो दूसरे के हित सामने रखता है, नंबर एक। तीसरी बात कि बड़े भाई ने जिस तरह से कहा कि हमें पड़ोसियों के साथ रहना चाहिए, डायलॉग चलते रहना चाहिए, पीसफुल सौहार्द की बात होती रहनी चाहिए, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस देश में सरकार एक्स की हो या वाई की हो, ये पीसफुल बातचीत कहाँ से चल रही है और कौन इसे रोक रहा है? शाह मोहम्मद कुरैशी इस मुल्क के अंदर बैठे हुए बड़ी दोस्ती की बातें कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, और वो रात में पता चला कि मुंबई में अटैक हो गया है, वो रातों रात यहां से गए, वो आए, वो कहते हैं कि हम दोनों की समस्या है। तो इस समस्या को खड़ा पाकिस्तान ने पहले किया, आतंकवाद का ढांचा, और आतंकवादियों को पाला पोसा। अब पड़ोस में उन्होंने शुरू किया, फिर अफगानिस्तान में शुरू किया। अब जब उन्हें लगा कि अफगानिस्तान में अमेरिकन सेना है, इधर भारत के अंदर दबाव बना, तो उन्होंने अपने यहां शुरू कर दिया। तो अब जैसे हमारे यहां के जो सरकारी लोग हैं या जो हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसको लोग जब ये कहते हैं कि वो भी आतंकवाद से ग्रस्त है, तो उनके आतंकवाद में हमारे में ये भैया हमने नहीं खड़ा किया था, आप ही ने आतंकवादी खड़े किए थे। अब वो जब आपको मार रहे हैं तो आप हमारी बराबरी करने लगते हो कि भाई आपके यहां भी आतंकवाद हो रहा है, हमारे यहां भी हो रहा है, लिहाजा हमारे घाव उनके घाव एक नहीं है। माय डियर, समझे इस बात को। 160 लोग भारत के मरे हैं, पाकिस्तान में भारत ने कोई आतंकवादी नहीं भेजा। अगर उनके यहां क्वाट में, स्वात में, क्वेटा में जो बम धमाके हो रहे हैं वो उनके अपने पाले हुए लोग हैं, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। लिहाजा वो ये कहते हैं कि आतंकवाद से हम भी ग्रस्त हैं, आप भी ग्रस्त हैं, और हमारे यहां बहुत लोग मरे। भैया, तो आपकी तो स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को बढ़ावा देना, उसमें ISI हो चाहे आर्मी हो या कोई हो। दूसरी बात, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती कि जो उनकी जमहूरी सरकार है वो ये समझती है, क्या कहते हैं कि ISI जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, दो मुल्कों के हिसाब से देखें, ये कोई घर के अंदर किसी पड़ोसी रिश्ते की बात नहीं हो रही है कि अगर एक मुल्क के अंदर इस किस्म के एलिमेंट कंटिन्यू हैं तो आप उसको कैसे खत्म करेंगे? कि बार बार कहेंगे आप टेबल बैठ जाइए, फिर एक मुंबई हो गया, फिर टेबल बैठ जाइए, फिर पार्लियामेंट हो गया, फिर अक्षरधाम हो गया, फिर कश्मीर हो गया। अभी ये बातचीत चल रही थी, अभी शाम 5 बजे जब ये बातचीत बार जो है LOC नहीं, अभी ये बातचीत चल रही थी अंदर भाई। अभी पिछले 5 आतंकवादियों में से 3 मारे हैं और ये लाइव चल रहा है, सबको पता है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ आप ये पॉलिसी है, दूसरी तरफ आपकी ये पॉलिसी है, चौथी बार आप कहते हैं कि नहीं डायलॉग को रखना चाहिए। तो डायलॉग फॉर व्हाट? कोई भी चीज का कोई अर्थ होता है ना। आप डायलॉग से 60 साल में अभी तक आप यही साबित नहीं कर पाए पाकिस्तान को कि जिस वक्त 47 में मुल्क को आजादी मिली 2 हिस्सों में बटा, उन्होंने बद्दुओं को आगे भेजा कश्मीर में।
और उसके पीछे रेगुलर सेना, वो कहता है हमने तो नहीं करा। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आप किस तरीके से इस पोजीशन पर लाएंगे तब वो ये माने और अपनी गलती का एहसास करे और उसके बाद पीछे जाए। अमेरिका की जहां तक बात आप करते हैं, अमेरिका पूछता नहीं है किसी से कि 26/11 आपके यहां हो गया तो मुझे हमला करना चाहिए नहीं, हम कर। ये भारत सरकार की कमजोर नीति है, ये भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है। अब उसको आप अपना डोमेस्टिक कंपल्शन कह लीजिए, अभी जो भी कुछ करा जा रहा है और जितनी बातें भारत की तरफ से कही जा रही हैं कि एक तरफ तो भारत का गृह मंत्री उसी वक्त कल कह रहा है 1 बजे कि पाकिस्तान का ये हाथ है, ये प्रूफ है। या तो गृह मंत्री मूर्ख बना रहे हैं किसी को या किसी को गुमराह कर रहे हैं, और रंजन मथाई साहब उनसे बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि वो हमने तो, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं की सरजमीन पे फॉरेन मिनिस्टर बैठ करके यहां से कह के चला गया कि साहब नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह से रिजेक्ट करता हूं, खारिज करता हूं कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप हमें प्रूफ दीजिए। आप प्रूफ अंदर किसको दे रहे हो? उन लोगों को प्रूफ दे रहे हो जो खुद मास्टर प्लानर है। दे आर व्हाइट कॉलर पीपल यार। अगर आईएसआई इन्वॉल्व है, अगर आर्मी इन्वॉल्व है, अगर गवर्नमेंट की शय है, तो आप उनको प्रूफ दे रहे हो। फिर आप प्रूफ करेंगे, वो फिर खुद भारत कह रहा है, क्या कहते हैं कि वो जो कंट्रोल रूम बना था उसे डिसमेंटल भी कर दिया। रिएक्शन आपसे लेंगे, लेकिन पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच 2 दिन चली बैठक इस सहमति के साथ खत्म हो गई कि दोनों देश बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे और सितंबर में पाकिस्तान में दोनों देशों के विदेश सचिव एक बार फिर से मिलेंगे। परस्पर विश्वास बहाली बढ़ाने, शांति, सुरक्षा और जम्मू कश्मीर पर दोनों देशों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मुंबई हमलों के आरोपी अबू जिंदल के खुलासों को लेकर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंबई हमलों में पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के शामिल होने से साफ इनकार किया और कहा कि जिंदल के मसले पर वो भारत के साथ साझा जांच करने को तैयार है। हालांकि भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई ने साफ कहा है कि मुंबई हमले के दोषियों को अंजाम तक पहुंचाना भारत पाकिस्तान के बीच भरोसा कायम करने वाला सबसे बड़ा कदम होगा। इसके अलावा रंजन मथाई ने कहा है कि पाकिस्तान को मुंबई हमलों से जुड़े सारे सबूत दिए जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी नहीं शामिल है, उससे पाकिस्तान की हकीकत फिर सामने आ गई है कि वो आतंकवाद के मसले पर कितना संजीदा है। इसके अलावा जिलानी ने ये भी कहा है कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए खतरनाक है, इसीलिए दोनों देशों को आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान के इस रवैये पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा है कि मुंबई हमलों पर ठोस प्रमाण के बाद ही पाकिस्तान का नाम लिया गया है और संयुक्त जांच का भरोसा देकर पाकिस्तान अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। साथ ही पाकिस्तान को नसीहत भी दी है कि भारत की आतंकवाद पर की गई मांगों को लेकर पाकिस्तान का ऐसा रवैया दोनों देशों के संबंधों के लिए ठीक नहीं है। भारत हमेशा से क्षेत्र में शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता मानता रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते बनाने के लिए ठोस कदम पाकिस्तान को भी उठाने पड़ेंगे। दोनों देशों के बीच दोबारा से क्रिकेट शुरू होने को लेकर भी चर्चा हुई है और पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इसके लिए कुछ सुझाव भी रखे हैं, लेकिन भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा है कि इसमें सुरक्षा का मसला भी शामिल है और क्रिकेट संबंधों की बहाली का फैसला बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को करना है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच बातचीत तो लगभग हर मुद्दे पर हुई, लेकिन बातचीत जारी रहेगी इस पहलू को छोड़कर और कोई ठोस बात 2 दिन चली बातचीत में निकलकर सामने नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तो महेश्वरी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जिस तरह की बात गृह मंत्री पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि अबू जिंदाल जिस तरह के खुलासे हुए हैं वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, फिर कांग्रेस पार्टी जो कि यूपीए सरकार का नेतृत्व कर रही है वो कह रही है कि पाकिस्तान का अगर हम नाम ले रहे हैं तो हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, उधर विदेश सचिव या फिर विदेश मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी ठीक है, बातचीत हुई है, वो उतनी अहमियत देता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको लगता है कुछ कंफ्यूजन है सब में, उसका फायदा यहाँ पर उठाता है पाकिस्तान? देखिए, दुनिया जानती है, हाँ, आज दुनिया जानती है कि बॉम्बे अटैक में पाकिस्तान का हाथ है। वहाँ के अवाम जानते हैं, हमारे अवाम जानते हैं, वहाँ के अवाम जानते हैं, और ये अवामों का सवाल है। ये जो गवर्नमेंट एजेंसी है ये टेम्परेरी, आज आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी, आपने देखा कि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जिस तरीके से बढ़, तो ये हम समझा क्यों नहीं पा रहे आखिर? नहीं, ये समझ रही है। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ये वहाँ का भी आवाम समझ रहा है। आपने जितने अब ये जमहूरियत आ रही हैं, आपने नेपाल में देखा, साहब जितने भी अभी आई हैं
तो सब में डेमोक्रेसी बदल रही है, जनता का रुझान बदल रहा है। तो ये जो चीजें ये टेम्परेरी फेज है, मैं समझता हूँ कि इंडिया का अवाम भी और पाकिस्तान का अवाम भी वो एक होना चाहता है, वो इन चीजों से बरगलाने वाला अब नहीं है। लेकिन ये इनकी थोड़ी सी मजबूरी है धीरे धीरे, लेकिन पब्लिक के प्रेशर से आप देखें जिस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर बदल गया, तो ये जो चीजें हैं ये अब हम समझते हैं कि जनता जनार्दन जो है जब उसका आपस में सौहार्द बढ़ रहा है तो ये चीजें अब आगे आने वाले वक्त जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है, हमारा मानना ही है। पुष्पेंद्र, अगर देखा जाए जिस तरह से कह रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, धीरे धीरे सिक्योरिटी का मसला खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता कि अवाम का डिप्लोमेसी में और दो देशों की दोस्ती में और दुश्मनी में क्या मामला है। क्या भारत का अवाम अमेरिका के खिलाफ था पहले जब हम वारसा पैक्ट में रशिया के साथ खड़े थे? क्या रशिया से आज हमारे संबंध खराब हो गए जिसको हम अमेरिका की गोद में जा रहे हैं? दो रिश्तों में कोई लेना देना नहीं। ये किसी भी बात को टालना और किसी भी इस बात को जिसमें आप कमजोर हैं या आप नहीं कह पा रहे हैं उसके ऊपर एक मुलम्मा चढ़ाने वाली बात है कि दोनों देशों का, उस देश का प्रधानमंत्री अवाम के दबाव में नहीं हुआ, उसमें अवाम का कोई लेना देना नहीं है, अवाम से कोई मतलब नहीं है उस बात का। वो तो कोर्ट का अपना कोर्ट का ऑर्डर है और कुछ कोर्ट का इंटरनल मामला है, और वो भी इंटरनल मामला है, कोई दबाव में नहीं हो रहा है। अगर दबाव में होता तो लोग बाघा बॉर्डर क्रॉस करके चले आते और इस पाकिस्तान के अंदर हंगामा होता, लोग सड़कों पे निकल आते। पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस 26/11 को यह साबित करने में लगा रहा कि नहीं ये तो एजेंसीज ने कराया है। आप किस अवाम की बात कर रहे हैं? वो 5% अवाम जो मोमबत्ती लेके खड़ा होता है इंडिया गेट के ऊपर और लाहौर की चौक के ऊपर, उससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं बदलती है। आप दोस्ती की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि जितने भी जख्म पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दिए, इसके 2% भी अगर भारत पाकिस्तान के साथ कर देता तो लोग सड़कों पर उतर आते। सारी दोस्ती, भाईचारा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये एक तरीके से गवर्नमेंट की डाइवर्टिव टैक्टिक्स है कि आप इसमें लगे रहिए। भारत के प्रधानमंत्री को अपने कंपल्शंस के तहत भारत की जो 2014 के चुनाव हैं, डोमेस्टिक करेंसी को एड्रेस करना है, उनको वहां जाना है। उसके लिए किसी भी कीमत पे हमें ऐसे माहौल को बनाना है कि नहीं सब ठीक चल रहा है, सब बात ठीक है, वो देखिए मान तो नहीं रहा है, हमने दे भी दिए प्रूफ, अब बदलेगा, दोस्ती होनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। तो ये तो मिल रहे हैं लोग। नहीं, पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो आपकी सरजमीन पे बैठ के आपके वजीरे जिसे कहने चाहिए दाखिला जनाब पी चिदम्बरम के मुंह पे कालिक पोत के चले गए और आप कह रहे हैं कि हमने डॉट पकड़ लिए हैं, अब तो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। एक जिंदा आपने उसको पकड़ा हुआ है कसाब को, दूसरा ये मिसिंग लिंक था, इसको आप सऊदी अरब से लेके आए। पूरा देश जानता है कि कहते हैं कि सऊदी अरब से लाने के लिए पाकिस्तान ने पूरा दबाव डाला था सरकार के ऊपर कि किसी भी तरीके से इसको ना दिया जाए। वो अमेरिका की इंटरवेंशन के थ्रू आपको एक आदमी मिला, उसको आप ले आए हैं, सारी कड़ियां आपके पास हैं, आप 12 डोजर दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आप पहली बार दे रहे हैं, आप हर बार कहते हैं कि आप मानिए, वो कहता है कह के चला जाता है। लेकिन आप क्या, जब तक आप टफ होते हैं तब आपकी, अगर ऐसी दोस्ती होने लगी तो फिर देश पे सेनाओं की क्या जरूरत है? फिर तो पीपल टू पीपल कंटेंट में लोग तय करेंगे। साहब, क्या टफ होने की जरूरत है यहां पर? नहीं, टफ होना चाहिए। वो आप जो बात में कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है। मैं दूसरे एंगल से कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम दो भाई हैं, हमारा नजरिया और देशों के तरीके से नहीं हो सकता। हम आपस में भाई हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ये समझना पड़ेगा कि वी हैव टू कोएग्जिस्ट। उसमें जो है उसकी बदले की भावना या हॉस्टाइल जो है वो ज्यादा दिन दोनों के लिए नुकसानदेह, और या आवाम समझ चुके हैं, हम भी समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो भी गवर्नमेंट समझ रही है, लेकिन उनकी थोड़ी सी मजबूरियां हैं, वो काफी ओवरकम कर ली हैं। आप आज देख रहे हैं आज मिलिट्री का उतना रोल नहीं है, आज ISI भी उनका कमजोर हो रहा है, आज आतंकवाद पहले से बहुत घट गया है। तो ये उपलब्धि में वो भी लगे हुए हैं। नहीं, अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले ही परवेज मुशर्रफ जो पूर्व राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पाकिस्तान पर आर्मी फौज का कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है। तख्ता पलट की आशंका उन्होंने जताई। मैं महेश्वरी साहब की मैं तो उस बात को कह रहा हूं जिसकी बात महेश्वरी साहब कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माहौल बदल रहा है और ISI कमजोर हो रही है। 3 घटनाएं बता देता हूं मैं। जिस वक्त मुंबई के ऊपर हमला हुआ, शाह मोहम्मद कुरैशी हिंदुस्तान में मौजूद थे। जब ये वहां से गए, जरदारी ने रात में घोषणा की कि पाकिस्तान का DG ISI पाशा हिंदुस्तान जाएंगे और बात करेंगे। इस 24 घंटे नहीं लगे इस बात को कि उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने फौरन वापस ले लिया कि कोई हमारा पाशा नहीं जाएगा यहां से। नंबर 1। दूसरी बात, जिस तरीके से हक्कानी साहब, हुसैन हक्कानी एम्बेसडर जो थे पाकिस्तान के अमेरिका में थे, हाईली क्रिटिकल हैं फौज के सिलसिले में। जब उनके थ्रू उन्होंने कहा कि तख्ता पलट हो रहा है, खत भिजवाया, तो सबसे पहले हक्कानी को पैदल किया ISI के कहने से। अभी जरदारी साहब ने, अभी जब वो यहां आए थे क्या कहते हैं अजमेर के सिलसिले में, और ये कह के गए क्या कहते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, मरहूम 80 साल के जो यहां चिश्ती साहब थे, भारत ने उसको
फॉलो किया और 3 दिन के अंदर उस पर डिसीजन हो गया। सरबजीत का मामला हुआ, अनाउंस हुआ, फरदुल्ला बाबर ने अनाउंस करा, पूरे पाकिस्तान के चैनल ने उस पर चलाया। मैं खुद पाकिस्तान चैनल के लिए काम करता हूं, उस पर मैंने अपना पूरा इंटरव्यू दिया और रात के 12 बजे आपने उस डिसीजन को मोड़ दिया। ये किसके दबाव में हो रहा है? कहां कह रहे हैं कि आप आईएसआई कमजोर हो रही है, कहां कह रहे हैं आप आर्मी कमजोर हो रही है? जरदारी को बेवकूफ बना के रखा हुआ है इस देश के आईएसआई और आर्मी ने, वो बेचारा कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। और आज जो एक्टिविज्म जिसकी बात आप कर रहे हैं, चौधरी इफ्तिखार के थ्रू जो खेल हो रहा है वो आर्मी कर रही है। किसी दुनिया के अंदर कोई चीफ जस्टिस जो है, किसी प्रधानमंत्री कौन रहेगा या नहीं रहेगा इस पे फैसला नहीं हो सकता, लेकिन पूरी तरीके से एक एक्टिविज्म के तहत उसको हटाया गया क्योंकि खुद गिलानी साहब आर्मी के बहुत खिलाफ थे। तो तमाम असली शॉट किसके हाथ में है? अभी भी उन्हीं के हाथ में, चाहे डेमोक्रेसी हो या ना हो। चलिए, समय हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि विश्वास बहाली के कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन जो चिंताएं हैं खासतौर से आतंकवाद को लेकर भारत की, उस पर भी पाकिस्तान को बहुत ही संजीदगी से विचार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आपका, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।